Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Student, today we will do your worksheet which are based on your chapter, and that is fun with give and take. Okay, the chapter name is fun with give and take. These questions which are in your worksheet, these questions are related to your book. Okay, so first what you have to do, just revise your all the concepts. Okay, so for it you have to watch your previous video. Okay, so just to watch your previous video again and just revise your all the concept, and after that just do it your worksheet. Now let's start from the first question, and your question number 1 is complete the number pattern. Okay, so here you have some numbers, and you can identify the patterns which are followed by these numbers. So let's start from the first question. And that is 800 blank blank and 650. Again you have one blank, and after that 550 and 2 blanks. So you have to fill these blanks. So for it you have to identify the pattern between these numbers. Clear? So as you can see here you have 2 blanks and here you have 1 blank. So you can identify it by these 2 numbers also and by these 2 numbers also. So here I am going to use these 2 numbers because the difference between these 2 numbers is only 1 blank. क्लियर? आपके जो 650 है और 550 है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक ही ब्लैंक है. क्लियर? तो इसमें आपका ज़्यादा इजी होगा एज कम्पेयर टू 2 ब्लैंक्स. सो नाउ एज यू कैन सी हियर द डिफरेंस बिटवीन 650 एंड 550 इज इक्वल्स टू 100. क्लियर? आपको जो 650 है और 550 है, इसके बीच का डिफरेंस है 100, और आपको इस 100 को स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में, 1 एंड 2. क्लियर? बिकॉज आप क्या करेंगे, जब आप 650 में से एक नंबर डिक्रीज़ करेंगे इंक्रीज़ करेंगे तो आप इस स्टेप में आएंगे. अगेन आप उसमें से कुछ नंबर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे तो आप इस स्टेप में आएंगे. क्लियर? तो आपका जो टोटल डिफरेंस है दोनों स्टेप्स का वो है 100. इट मीन्स आपके कितने स्टेप्स हैं? 2. तो 100 डिवाइडेड बाय 2 होता है आपका, 100 डिवाइडेड बाय 2 होता है आपका 50. इट मीन्स जब आप क्या कर रहे हैं, एक स्टेप में जा रहे हैं तो आपके 50 ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और आप जब दूसरे स्टेप में आ रहे हैं तो आपके 50 अगेन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं. नाउ स्टूडेंट, एज यू कैन सी हियर योर फर्स्ट नंबर इज 800 एंड इट्स 650 एंड अनदर इज 550. सो इट्स योर डिक्रीजिंग ऑर्डर. आपकी चीज़ें क्या हो रही हैं? डिक्रीज़ हो रही हैं. क्लियर? आपकी चीज़ें क्या हो रही हैं? यहाँ पर आपकी चीज़ें डिक्रीज़ हो रही हैं, यानी कि वो घट रही हैं. क्लियर? फर्स्ट नंबर आपका 800 है, दूसरा 650 है, देन 550 है. इट मीन्स आपकी चीज़ें घट रही हैं. तो आपको क्या करना है, 650 में से 50 कम करना है, देन आपको 50 और कम करना है. ओके, आप फर्स्ट स्टेप में -50 करेंगे, अगेन स्टेप पे -50 करेंगे. सो टोटल आपके क्या हो जाएंगे, 100 माइनस हो जाएंगे. और आपके 650 और 550 के बीच में डिफरेंस भी तो 100 का है ना. करेक्ट? सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट सब्ट्रैक्ट 50 फ्रॉम 650 एंड you will get 600. Okay, so your answer is 600. The number which is between 650 and 550 is 600. Okay, and here the difference between 650 and 600 is 50, and 600 and 550 is 50. It means your answer is correct. Now you have to arrange the numbers in descending order. Okay, so 550 minus 50 is equals to 500. आप यहाँ पर से 50 माइनस करते जाएंगे, and 500 minus 50 is equals to 450. क्लियर? अब आप जब इस साइड के नंबर्स को लिखेंगे तो यहाँ पे नंबर बढ़ेंगे. क्लियर? क्योंकि आपका ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो सबसे स्टार्टिंग के नंबर बड़े होंगे और सबसे लास्ट के नंबर क्या होंगे, आपके छोटे होंगे. सो नाउ 650 प्लस 50 एंड दैट इज 700, एंड 700 प्लस 50 इट्स 750. ओके, सो दैट इज योर पैटर्न. फर्स्ट नंबर इज 800, another is 750, then 700, 650, 600, 550, 500, 450. Okay, minus 50, minus 50, minus 50, minus 50, minus 50, minus 50, and minus 50. Now come to the next question, and in your next question the pattern is 325, 360, fill up, and 430. Okay, so now the difference between 325 and 630 is 10 minus 5, 5, it becomes 5, 5 minus 2, 3, and 3 minus 3, 0. So now, okay, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 35. Okay,
So now the difference is 35 and the difference between 325 and 360 is 35. Okay, and ये आपका क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है. आपकी पहले 350 था जो छोटा था, फिर 360 हुआ. इट मीन्स ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है. इट मीन्स आपको क्या करना है, अब 35 35 35 35 35 प्लस करने हैं. ओके, ऐड करने हैं. सो इट्स 35. when you add 35 with 325 you will get 360. so now when you add 35 with 360, so you will get 360 plus 35, 5 plus 0 5, 6 plus 3 9, and that's 395. so you will get 395. okay, now when you add 35 with 395 you will get 430. okay, it's 395. okay, and 395 plus 35 and it's equals to 5 plus 5 0, 9 plus 3 12 and जो 1 कैरी था that's 13, 3 कैरी 1 that is 430. और आपके यहाँ पे भी क्या है 430. इट मीन्स आपका आंसर जो है वो क्या है, करेक्ट है. 395 जो आपका करेक्ट आंसर है. Now add 35 with 430 and you will get 430 plus 35. So 5 plus 0 5, 3 plus 3 6, and that is 465. So here your answer is 465. Now just add 35 with 465 and you will get 5 plus 5 10 carry 1, 6 plus 3 9 plus 1 10, 0 carry 1, and 4 plus 1 5. okay, so your answer is 500. 465 plus 35 is equals to 500. now just add 35 with 500 and your answer is 535. okay, अब जैसे ही 35 ऐड करेंगे 500 में तो ये हो जाएगा आपका 35. so it means your answer is 325, 360, 395, 430, 465, 500 and last is 535. Now next question, and as you can see here is 815 and 715 and difference between 815 and 715 is 100. okay, 815 आपका 815 है जो, उसमें से अगर आप 715 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपका आंसर आता है 100. ओके, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है आपका 100. और आपका ये क्या है, अगेन ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है. ओके, छोटे से बड़ा. तो आपको क्या करना है, अब 100 100 माइनस करना है. सो 715 माइनस 100 इट्स 615. 615 माइनस 100 दैट इज़ 515 एंड 515 माइनस 100 दैट इज़ 415. इट मीन्स हम जो आंसर कर रहे हैं, हम जिस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं वो है करेक्ट. 415 माइनस 100 दैट इज़ 315. ओके, एंड आपका यहाँ पे क्या है 815, तो आपका यहाँ पे ऑब्वियसली 100 ज़्यादा होगा तभी तो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होगा. सो दैट इज़ योर 915. क्लियर. हम इस साइड जाएंगे तो हम 100 ऐड कर रहे हैं और हम इधर जाएंगे तो हम 100 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपका क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर है. तो जो आपके ऊपर की चीज़ें होंगी, फर्स्ट थिंग होगी आपकी हमेशा क्या हो, बड़ी होगी और फिर आपके नंबर जो है वो छोटे 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 होते चले जाएंगे. नाउ नेक्स्ट इज़ 250 and 375. okay, so difference between 250 and 375 is equals to 5 minus 0 5, 7 minus 5 2 and 3 minus 2 1. so that is 125. it means क्या है, आपका हर नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो है 125. अब हम इसके ऑर्डर को चेक कर लेते हैं. दैट इज़ 250 एंड इट्स 375. सो आपका फर्स्ट जो नंबर है छोटा है और दूसरा नंबर क्या है, बड़ा. इट मीन्स ये आपका क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है. क्लियर. तो आप क्या करेंगे, नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. सो 250 प्लस 125 इज इक्वल्स टू 375. 375 प्लस 125, 375 प्लस 125 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 5 0 कैरी 1, 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10 0 कैरी 1, 3 4 एंड 5. सो इट्स 500. ओके, 375 प्लस 125 इज इक्वल्स टू 500. 500 plus 125 is equals to 650. It means we are following correct pattern. 625 plus 150 is equals to
625 plus 125 is equals to 750. Okay, and here what you have to do, just subtract 150. आप यहाँ करेंगे subtract करेंगे, क्योंकि आपका ascending order में फर्स्ट नंबर जो होता है वो छोटा होता है, फिर बड़ा 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 बड़ा. ओके, सो 250 minus 125 is equals to 10 minus 5 5, 4 minus 2 2, and 2 minus 1 1. So that is your 125. Okay, so now you have to write here 125. And जब आप 125 में से 125 माइनस करेंगे तो आंसर होगा 0. So first one is 0. Okay, first one is 0, 125, 250, 375, 500, 625 and 750. Okay, now come to the next question. Find the missing numbers. ओके, एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू. आपको क्या करना है, इनमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने हैं. एंड सेम क्वेश्चन यू हैव इन योर बुक ऑल्सो. 65 प्लस 37 दैट इज इक्वल्स टू 102 एंड 75 माइनस 37 दैट इज इक्वल्स टू 20. ओके, यहाँ पे आपका सब्ट्रैक्शन का साइन है तो यहाँ होंगे माइनस, और यहाँ पे एडिशन का साइन है तो ये होंगे ऐड. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. एंड स्टूडेंट्स दैट इज़ 200. ओके, यहाँ पे क्या है 200 है, ये मिसप्रिंट हुआ है, सो दैट इज़ योर 200. नाउ 145 प्लस 55, यहाँ पे प्लस का साइन है, सो 145 प्लस 55 दैट इज इक्वल्स टू 200. एंड 210 माइनस 55, 210 माइनस 55 करके देखिए कितना आता है, दैट इज़ 155. ओके, सो दैट्स योर पैटर्न. आपको मिसिंग नंबर यहाँ पे लिखने हैं, सो दैट इज़ योर मिसिंग नंबर एंड इट्स 155. 210 में से जब आप 55 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 155. ओके, पॉज द वीडियो एंड राइट द आंसर्स. नाउ नेक्स्ट वन इज 220 प्लस 200. सो 220 या 200 को जब आप प्लस करेंगे तो आपका आता है 420. ओके, नाउ हियर यू हैव अ नंबर विच इज़ मिसिंग. ओके, यहाँ का नंबर आपका क्या है, मिसिंग है. आपको इस नंबर में से क्या करना है, 200 सब्ट्रैक्ट करना है और आपका आंसर होना चाहिए 650. क्लियर. तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका साइन क्या है, सब्ट्रैक्शन. आपको एक बहुत बड़े नंबर में से 200 सब्ट्रैक्ट करना है तो आपका आंसर होता है 650. ओके, तो अब यहाँ का जस्ट अपोजिट साइन है, जो सब्ट्रैक्शन का अपोजिट क्या होता है, एडिशन. आप कर दीजिए यहाँ पे, इन दोनों को कर दीजिए ऐड. क्लियर. अब हम यहाँ पे ऐड क्यों कर रहे हैं, आपने किसी नंबर में से 200 सब्ट्रैक्ट किया और आपको मिले 650. क्लियर. तो वो नंबर क्या हो सकता है, जब आप इन नंबरों को ऐड कर देंगे तो ऑब्वियसली आपको वही नंबर मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट यू हैव 3 बुक्स. ओके, एंड यू गिव 1 टू योर फ्रेंड. आपने एक क्या कर दिया, अपने फ्रेंड को दे दी है, तो आपके पास कितनी बची, 2. ओके, तो अगर मैं कहूँ कि मैंने अपने फ्रेंड को जो है वो मैंने एक बुक दी और मेरे पास 2 बुक बच गई, तो मेरे पास यानी कि टोटल कितनी बुक्स थी, 2 + 1 3. ओके, सो सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे. आपने जिस नंबर से 200 को सब्ट्रैक्ट किया है, 200 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका 650 बचा. इट मीन्स आपका जो वो नंबर था वो 650 से 200 ज़्यादा था. ओके, सो 650 से 200 ज़्यादा क्या होगा, 650 plus 200. Okay, so that is your 850. Clear. So here the missing number is 850. 850 में से जब आप 200 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 650. Okay, now next is 220 plus 200, that is 420. Now come to the next question. Question number 4. Again you have one number and you have to subtract 240 out of this and you will get 110. ओके, 240 आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी नंबर से और आ रहा है 110. सो अगेन यू हैव टू ऐड दीज 2 नंबर्स. 240 प्लस 110, 240 प्लस 110. ओके, सो योर आंसर इज 4 + 1 5 and 2 + 1 3, दैट इज 350. ओके, 350 में से जब आप 240 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर होगा 110. नाउ you have to subtract 240 from 670. 670 से जब आप 240 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना होगा, 430. ओके, आप इसको करके देखिए, 270 माइनस 240 एंड यू विल गेट 430. अगेन पॉज द वीडियो एंड राइट द आंसर इन योर नोटबुक.
कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ योर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ओके, आपको सिर्फ इन प्रॉब्लम्स को पढ़ के ये फाइंड आउट करना है कि आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, आपको यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखना है। सो नाउ योर फर्स्ट कंडीशन इज चंचल सोल्ड 97 एग्स रोल्स विल मोहिनी सोल्ड 65 वेजिटेबल रोल्स। ओके, इन चंचल ने क्या है 97 एग रोल बेचे हैं और मोहिनी ने 65 वेजिटेबल्स रोल्स बेचे हैं ड्यूरिंग फेयर, एक मेले में। हाउ मैनी रोल्स दे सोल्ड टुगेदर, तो अब हमें क्या बताना है कि दोनों ने मिलके, ओके, चंचल एंड मोहिनी दोनों ने मिलके टोटल कितने रोल्स क्या हैं सोल्ड किए हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम इनको करेंगे ऐड, क्योंकि हमसे क्या पूछा, टोटल पूछा है ना, चंचल के भी पूछे हैं और मोहिनी के भी पूछे हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम करेंगे एडिशन। ओके, सो 97 प्लस 65 एंड 97 प्लस 65 आप इसको ऐड करके देखिए कितना होगा, दैट इज 162। ओके, तो आप एज अ आंसर यहाँ पे लिखेंगे 97 प्लस 65 विच इज इक्वल टू 162। नेक्स्ट इज शामी रीड अ बुक 125 पेजेस। आपने शामी क्या है, उन्होंने एक बुक के क्या है 125 पेजेस को क्या किया है, रीड किया है मंडे को। ऑन द सेम डे जतिन हिज ब्रदर रीड अ बुक ऑफ 82 पेजेस, और उसी दिन क्या है जतिन जो कि उनके भाई हैं उन्होंने एक बुक के 82 पेजेस पढ़े हैं। क्लियर। हाउ मैनी मोर पेजेस वर रीड बाय शामी देन जतिन, तो ऑब्वियसली 125 जो है वो 82 से ज़्यादा है, इट मीन जो है शामी ने जतिन से ज़्यादा पेजेस पढ़े हैं। बट क्वेश्चन ये है कि शामी ने जतिन से कितने ज़्यादा पेजेस पढ़े हैं। तो ऑब्वियसली जब हम दो चीज़ों के डिफरेंस को निकालते हैं तो हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो जब आप 125 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 82, शामी ने जितने पेज पढ़े हैं उतने, उसमें से आप वो पेजेस अगर निकाल दें जितने जतिन ने पढ़े हैं तो वो पेजेस बच जाएंगे जितने शामी ने ज़्यादा पढ़े हैं। ओके, सो 125 माइनस 82 इज इक्वल्स टू 43। हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन क्यों किया है, क्योंकि हमें इन दोनों के पेजेस का लगाना है डिफरेंस। ओके, हमें इन दोनों के पेजेस का डिफरेंस निकालना है, इसलिए हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो शामी ने जितने पेज पढ़े हैं और जतिन ने जितने पेज पढ़े हैं दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका आएगा 43। इट मीन्स शामी ने जो है जतिन से 43 पेजेस ज़्यादा पढ़े हैं। नेक्स्ट इज़ आदर्श पब्लिक स्कूल इज़ टेकिंग इस स्टूडेंट फॉर पिकनिक। एक स्कूल है जिसका नाम है आदर्श पब्लिक स्कूल, वो क्या कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स को ले जा रहे हैं पिकनिक में। 74 students of class 9th and 99 students of class 10th are going for the picnic. So 74 students 9th के and 99 students 10th के जो है वो इस पिकनिक में जाते हैं। Now question is that find the total number of students who are going for the picnic. अब आपको बताना है कि टोटल कितने बच्चे जो हैं वो पिकनिक में गए हैं। तो अगेन आपको क्या है, टोटल बताना है। इट मीन्स आप करेंगे एडिशन, टोटल मीन्स एडिशन। सो 74 प्लस 99 एंड दैट इज इक्वल्स टू 173। ओके, 74 प्लस 99 आपका होगा 173। इट मीन्स टोटल जो है वो है 173 बच्चे पिकनिक में गए हैं ग्रेड 9 एंड ग्रेड 10th के। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज read the following information carefully and answer the following question. So students सेम क्वेश्चन आपकी क्या है बुक में भी है, तो अब जब आप रिवाइज करेंगे अपने बुक के पेजेस को तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो नाउ योर क्वेश्चन इज here you have 2 days Monday and Tuesday, okay, and you have 3 types of books, story book, science book and GK book, okay। तो ये क्या है आपका कोई फेयर है, कोई मेला है या कोई बुक स्टॉल है जहाँ पे क्या है आपके मंडे को 58 स्टोरी बुक सेल हुई हैं एंड ट्यूसडे को 47 बुक हुई हैं। मंडे को आपकी क्या है 69 साइंस बुक्स हुई हैं एंड ट्यूसडे को 85 साइंस बुक्स हुई हैं। मंडे को 32 जीके की हुई हैं और ट्यूसडे को 67 जीके की बुक्स क्या हुई हैं, सोल्ड हुई हैं। अब आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन चेक करने हैं अकॉर्डिंग टू दिस डाटा। हाउ, लेट्स चेक। हाउ मैनी जीके बुक्स वर सोल्ड इन 2 days। जीके की कितनी बुक्स जो हैं वो 2 दिन में सेल हुई हैं। सो मंडे को 32 हुई हैं एंड ट्यूसडे को 67 हुई हैं। सो 32 प्लस 67, 7 प्लस 2 9, 6 प्लस 3 9, सो टोटल 99। क्लियर, आपकी क्या हुई हैं, टोटल जीके की 99 बुक्स हुई हैं दोनों दिन में सेल। नेक्स्ट इज हाउ मैनी साइंस बुक्स वर सोल्ड इन 2 days। 2 दिन में कितनी साइंस की बुक जो है वो सेल हुई हैं।
तो आपको क्या करना है 69 एंड 85 को कर देना है ऐड। क्लियर, टोटल पूछा है ना। सो व्हेन यू ऐड 69 विद 85 यू विल गेट 154। ओके, आपका आंसर आएगा 154। So total science books sold within 2 days, that is 154. Next is how many story books were sold in 2 days? टोटल कितनी स्टोरी बुक्स जो हैं वो दोनों दिन में क्या हुई हैं, सोल्ड हुई हैं। क्लियर। सो अगेन आप क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे 58 + 47, और जब आप 58 और 47 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 105। ओके, 105 जो आपकी स्टोरी बुक्स हैं वो दोनों दिन में क्या हुई हैं, सेल हुई हैं। नेक्स्ट इज how many more GK books were sold in Tuesday than Monday? आपकी ट्यूसडे को मंडे से कितनी ज़्यादा क्या है जीके की बुक क्या हुई है, सोल्ड हुई है। जीके में आपकी क्या है, मंडे को 32 ही हुई थी, ट्यूसडे को 67 हुई है, तो ऑब्वियसली ट्यूसडे को ज़्यादा बुक सोल्ड हुई हैं, पर कितनी ज़्यादा हुई हैं। ओके, तो आप ट्यूसडे को जितनी बुक सोल्ड हुई थी जीके की, अगर आप उसमें से मंडे को जितनी हुई हैं वो सब्ट्रैक्ट कर दें, ओके, देन यू विल गेट 35। इट मीन्स आपकी क्या है, ट्यूसडे को मंडे से 35 बुक्स ज़्यादा सेल हुई है, कौन सी, जीके की। क्लियर, आपकी जीके की क्या है, ज़्यादा बुक सेल हुई हैं एज़ कम्पेयर टू मंडे। तो कितनी ज़्यादा हुई हैं, 35, दैट इज़ 99। Second answer is 154. Third answer is 105. Fourth one is 35. Now come to the next one. Which book was sold the maximum in these 2 days? सबसे ज़्यादा कौन सी बुक जो है वो सेल हुई है इतने दिनों में? स्टोरी बुक हुई है, साइंस बुक हुई है, या जीके बुक हुई है? सो अब इनके टोटल को चेक कर लेते हैं। क्लियर, आपकी जीके की टोटल हुई थी 99, ओके, साइंस की हुई थी 154, एंड आपकी स्टोरी बुक्स हुई हैं 105। क्लियर, इट मीन्स आपकी क्या है, सबसे ज़्यादा साइंस की बुक सेल हुई हैं दोनों दिन में। सो आंसर इज साइंस, SEIENCE। नेक्स्ट इज विच बुक वाज सोल्ड द मिनिमम इन दीज 2 days? और सबसे कम जो हुई है वो आपकी 99 हुई है जीके की। सो योर आंसर इज जीके, सबसे कम आपकी जीके की बुक सोल्ड हुई है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द आंसर ई एंड एफ। आपके आंसर ई और आंसर एफ का डिफरेंस क्या है। क्लियर, साइंस की सबसे ज़्यादा हुई हैं, जीके की सबसे कम हुई हैं, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो साइंस की बुक्स थी आपकी 154 और जीके की थी 99। तो जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 55। इट मीन्स आपकी एज़ कम्पेयर आपकी जीके से 55 बुक्स जो हैं वो ज़्यादा सेल हुई हैं, किसकी, साइंस की। ओके, so now pause the video and write down the answers in your notebook. Now come to the next and last question, and this question also is related to your book. Count or subtract. An example has been done. Okay, आपको count करना है और क्या करना है, subtract करना है। 85 - 59, so 59, then 69, 79, 89 and then 85 आपको आना है पीछे, क्योंकि 89 तो आपका 85 से क्या है, बड़ा है। ओके, कितना बड़ा है, 4 स्टेप, तो आप 4 स्टेप आएंगे पीछे। सेम क्वेश्चन आपकी बुक में है, आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप वीडियोस को देख के चेक कर सकते हैं। क्लियर, सो दैट इज़ 10 10 10, सो दैट इज़ टोटल 30। एंड आपको क्या करना है, 4 स्टेप पीछे आए हैं आप, तो आप 30 में से कर देंगे -4 विच इज़ इक्वल टू 26। ओके, इट मीन्स योर आंसर इज़ 26, and here is your answer. Now come to the next one, 58 - 24. So again 24, 34, 44, 54, and that is your 58. So now it's 58. Okay, difference between 24 and 34 is 10, 34 and 44 is 10, 44 and 54 is 10, and 54 and 58 is 4. So 10 + 10 + 10, that is 30, + 4, 34. So your answer is 34, and you have to draw this pattern also. Okay, now next is 96 - 71. So here is your 71, 81, 91, and that is your 96. आपके यहाँ पे 96 है, so we will write here 96. Now the difference is 10, 10,
and here the difference is 5. Okay, 95 और 96 के बीच का difference है 5. So now just add 10 plus 10 plus 5 and which is equals to 25. Okay, 96 minus 71 is equals to 25. Now next is 67 minus 44. So that is your 44, 54, 64 and here is your 67. Okay, यहाँ पर 67 है, so that's your 67. 44 minus 54 is 10. 54 minus 64 is 10 and 64 minus 3 67 that is 3. 64 और 67 के बीच का जो डिफरेंस है वो है 3 का. Now add 10 plus 10 plus 3, so that's equals to 23. 10 plus 10 plus 3 is equals to 23. It means your answer 67 minus 44 is equals to 23. Okay, and student, that is your question number 5 and question number 6. So you have to do it by yourself. आप इसको खुद करेंगे अपने नोटबुक में एंड वन बाय वन आप अपने वीडियोस को पॉज करके चेक करेंगे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को और इसे करेंगे अपनी नोटबुक में. ओके, हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3. ओके, दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 4. ओके, तो वीडियोस में जैसे ही आपको वन बाय वन करके सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया गया है वैसे ही आप सारे क्वेश्चंस को लिख के वन बाय वन उनके आंसर्स को क्या करेंगे अपनी वन बाय वन उनको लिख के उनके आंसर्स को अपनी नोटबुक में करेंगे. ओके, क्वेश्चन 1 को नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 को नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 को नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 को वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए और जो भी आपके आंसर्स आपको वीडियोस में बताए गए हैं सॉल्यूशंस उनकी हेल्प से आप करेंगे, वीडियो की हेल्प से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए. दैट्स योर लास्ट क्वेश्चन. That's your last question. Okay, so now student, that's it for today. You have to do this worksheet in your notebook and if you have any problem then comment with the comment section. Okay, thank you so much. Thanks for watching this video. Goodbye, take care, have a nice day.